So, so I myself tell a lot of people when I talk to, like, about joining the film school, the most difficult path is of the director. All right, it's very difficult to become a big time director in Bollywood. I mean, I don't need to explain that. But if you want to be a cinematographer or an editor, the entry is much easier. Also, in terms of money, if you start working as an assistant to a cinematographer, you will be making 4-5 thousand bucks a day minimum. So and if you stay like that for a while, after a while you'll be minting money. पैसा तो अच्छा बनता है. एडिटिंग में इतना अच्छा सीन नहीं है, पर एडिटिंग में तुम्हें नौकरी मिल जाती है. Direction is the toughest thing to crack, because especially if you finish a direction course in FTI or SRFTI and come out, you will have to establish yourself through art house cinema first, right? And then you develop contacts in the industry, then develop trust among the people. So if somebody passes out from the institute, within 2 or 3 years, cinematographers will become independent and they'll become known film cinematographers. But filmmakers will take 10 to 15 years to get there. So that is why there is this impression. But at the end of the day, forget all this. It's a question of what you want to do. Because if you are an editor, you are editing for somebody, and in your mind, you want to be a director, what is going to happen is that you impose your directorial wisdom onto some guy who's doing his own thing. So Exactly. yeah, so that happens a lot. But in all fairness, life is much easier if you're into some technical course. You do a technical course, go that way. अच्छा है, तुम जी सकते हो, पर तुम कभी ठीक ठाक पिक्चर नहीं बना पाओगे. Like Sanjay Leela Bhansali was a editing pass out, who skipped out in Editing, the yeah. David Dhawan was somebody like that. Subhash Ghai was an acting pass out who later on became a director. So Yeah. ऐसे बहुत सारे examples. But also there are examples of people unlike that. Like from my institute, there was a director called Sagar Ballari who made Beja Fry. Beja Fry. सुना होगा तुमने. So he was हाँ a जी, हाँ जी. mainstream filmmaker. Unfortunately, उसके बाद के पिक्चरें सब चली नहीं कुछ अच्छा. He made 7 or 8 films actually. Also, in who else, like, there are people making direction guys. They end up becoming associate directors or writing scripts for other people. You find significant positions for yourself. But the industry is not very kind about placing somebody as a director, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो ऑल इन ऑल एक तरीके से होता है. इट्स ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल. सो उतना पावर एक 100 करोड़ के फिल्म के साथ इंडस्ट्री देना नहीं चाहती. दे विल वांट टू कंट्रोल दैट पर्सन, एंड एफटीआई से निकलने वाले डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. सो मीनिंग बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग. सो अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ पैशन. मुझे पिक्चर बनाना ही है. अभी वो मुझे इंडस्ट्री से पैसा नहीं मिलेगा तो मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, और मैं बना बना के मुंह पे फेंकूंगा लोगों के कि ये देखो. तो बहुत टफ लाइफ है. पर मैं अगर तुम्हें इंटरेस्ट है और तुम थोड़ा भी प्यार करते हो फिल्म और सिनेमैटिक मीडियम वगैरह से, तो डायरेक्शन ही करो. ठीक ठाक ही फिल्में ही बनाओ, जो तुम्हें ठीक लगे वही बनाओ. बट अगर नहीं तुम्हें एडिटिंग करने में अच्छा लगता है तो वो अलग बात है. यू नीड एडिटर्स. एडिटिंग के लिए लोग चाहिए, और कैमरा के लिए भी लोग चाहिए. ऐसी कोई बात नहीं है. मैं उन चीजों को कम करके नहीं देख रहा, पर डायरेक्शन एक अलग ही खेल है. इट्स लाइक द इफ यू कंसिडर फिल्म स्कूल टू बी द आर्ट, टू बी एन आर्ट स्कूल, द एक्चुअल आर्टिस्ट इज द डायरेक्टर. मतलब Director. कम से कम 3 साल के लिए तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी. उसके बाद तुम सड़कों पर इंस्टीट्यूट में एक बना लेते हैं. they'll make you into this kind of a character. कुछ ना कुछ तो तुम कर लोगे. कि ऐसा भूखे मरने का हाल नहीं होता, सरवाइव कर जाते हैं. Yes, sir. Thank you, sir. ये काफी ऐसा motivational था. Actually, I was an assistant editor last year in 2022, and again, जो the point that you were saying here was you will try to impose your directorial point of view over the editing work that you're doing. Yeah. और मैं भी questions ही raise कर रही थी. मैं dailies देखती थी रोज बैठ करके as an assistant, and then I would say कि I mean there is no structure here. ये story को adhere नहीं कर रहा है. What is the script? और since I नहीं was the वो only person there as an assistant, तो मेरे लिए बहुत वो problematic हो रहा था. And then I realized कि maybe I'm sort of inclining towards that having a control of the entire story, or like trying to give in suggestions for a project where I'm like very slightly involved in. I mean, I'm just a tool there. I'm not someone who's like
generating or deciding something for that story or that film. I was just asked to do something, and then I was adhering to it like some sort of a blueprint. I wasn't feeling like artistically expressed or exposed there. तो No, तभी मैंने realize किया था कि direction I think मुझे वो ज्यादा पसंद आएगी. nahi, ma'am, I should tell you something else. I also edit. I have edited about 4 feature-length films. One of them was a Punjabi feature film. I got a Best Editor award also for that. So, मतलब ऐसे professionally, I'm also an editor, you know. So I completely have no problem with editing, you know. But because I have done direction and because I've come through that, I will never impose myself on a director, you know. इसलिए मेरे को आर्ट हाउस डायरेक्टर्स बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि नए नए आइडियाज लोग लेके आते हैं, तो कोई नॉर्मल एडिटर होगा वो बोलेगा ये क्या ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, और वैसे करते भी हैं, यू नो, इम्पोज करते हैं अपने आप को. पर मैं वो इम्पोजिशन नहीं करता, क्योंकि मैं खुद अपने आप को उस जगह जगह पे देख सकता हूँ कि बेचारा वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसको खुद लाइक ऑल्सो इन डायरेक्शन, यू नो, यू आर ग्रोपिंग इन द डार्क, यू नो, मतलब पता नहीं होता कहाँ जा रहे हैं ना. तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसे बकवास करेगा, समझाने लगेगा कि यार ये ऐसे ऐसे कर लो, तो वो तुम्हारा नजरिया है ना, तुम उस चीज को कहीं देख रही हो, वो आदमी कुछ और ही देख रहा होगा, वो शायद उसको क्लियरली दिख ना रहा हो. उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा डायरेक्टर है, यू नो, ही इज ट्राइंग टू गेट देयर, इट्स इन हिज प्रोसेस, यू नो. सो वो एक अलग ही खेल है, मतलब वो नहीं समझा सकते. मतलब इफ यू आर नॉट अ डायरेक्टर एंड यू हैव नॉट गॉन थ्रू द पेन ऑफ डूइंग इट ना, यू कैन नॉट टेल समबडी व्हाई इट इज गुड. समझा नहीं सकते. जो उसमें से जो प्लेजर आता है, जो क्या बोलते हैं, तसल्ली मिलती है, वो तुम्हें एडिटिंग और कोई और चीज में नहीं मिलेगी. Okay, thank you, sir. अभी यही डाउट था. But I love that question. You know, ये बहुत discussion होती है. You know, in a couple of years back in the film festival, there was this discussion, exactly same discussion. कि, is the director the author of the film, or are the co-authors like cinematographers, editors equally authors? And it's a two-way thing. You know, वो debate है, हमेशा ही debate रहेगा. It will always be like that. But you have to remember that at the end of the day, the vision for a film is a director. You have a script, or somebody wrote a script and you saw, okay, I can make this into this. So that vision is what drives everybody else, you know. So without that vision, वैसे भी तुम editor और cinematographer बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसने बताया मैं वैसे कर दिया. You are not responsible at the end of the day. When the film comes out, if there's off focus shots, people are not really going to say that the cameraman was bad. People will just say that he casually direct kiya, you know. So even in editing, if there is a bad edit, people are not going to complain. You cannot decide who caused it, because it's a chemistry between the director and the editor, you know? Right. Suraj, is there any question from Suraj? मैम मेरे एक क्वेश्चन है, जैसे उन्नति मैम का भी वही क्वेश्चन था, तो उसी लाइन में मेरा क्वेश्चन है. Most of the people that I've talked to who has gone into FTI, जो डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग में नहीं जा पाते हैं, their first opinion is कि दूसरा फील्ड ट्राई कर लो, which is relatively easier, like go to editing or something, ताकि you get to set your foot at least अंदर तो जाओ उसके, because डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले ज्यादा डिफिकल्ट होता है अंदर जाना as compared to other departments, like what you said, editing. So, I mean, I wanted to ask how much of it is true. It is, like I said, it is true in the sense that कि तुम्हें initially नौकरी मिलने में सुविधा होगी. तुम एडिटर हो तो कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है. कोई टेलीविजन में कुछ एडिट होगा, कुछ ऐसी चीजें मिल जाता है. वो तो मुझे भी मिल जाता है. Even a direction pass out who can edit can get jobs like that. I used to do that, you know, क्योंकि पहले मुझे कोई असिस्टेंट लेता नहीं था. कि you look at me, I was more or less the same to look at about 15 years back, you know. इतने सफेद नहीं थे बाल, पर फिर भी मैं दिखने में ऐसे ही था. तो लोगों को तकलीफ होती थी मुझे असिस्टेंट रखने में. तो मुझे इन डायरेक्शन में मेरे को असिस्टेंट का काम मिलता ही नहीं था. या तो मुझे डायरेक्शन का काम मिलता था, बट आई कुडंट गेट वर्क एज अ असिस्टेंट. सो देन आई एंडेड अप स्टार्टिंग टू डू सिनेमेटोग्राफी. पहले तो मैंने सिनेमेटोग्राफी की. तुम इट डजंट मैटर, मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, हर एक आदमी के ऊपर है, तुम कैसे सर्वाइव कर पाते हो. तो अगर तुम्हारा रुझाव राइटिंग, फिल्म मेकिंग वगैरह में है, तो मैं बोलूंगा तुम उसमें घुस जाओ, और फिर सर्वाइवल के तरीके हम ढूंढ निकालते रहते हैं लोग, यू नो. So, but the worst thing is that in my batch with me, one of my editor himself, he was a pure editor. He didn't want to do cinema, you know. उसको editing ही अच्छी लगती थी.
ऐसे भी लोग होते हैं और वो अच्छी बात भी है। बट तुम सही बोल रहे हो, लगभग 50% लोग जो एडमिशन मिलके घुसते हैं वो लोग भी ये सोच के आते हैं कि मैं एडिटिंग कर करके डायरेक्टर बन जाऊंगा, पर ऐसे बहुत कम होता है। like in my batch none of the editors have gone towards direction सारे लोग एडिटिंग करना शुरू कर दिए, फिर वो धंधा बन जाता है, तुम्हें वो अच्छा भी लगने लगता है, तुम्हें कंफर्ट जोन में आ जाते हो और तुम वही करते रहते हो। अब Right, right. yeah, so the cases of people who have become big like that, like David Dhawan or Sanjay Leela Bansali and all, that was an earlier industry. इंडस्ट्री पहले अलग थी, अभी ये कॉर्पोरेट कल्चर के बाद इंडस्ट्री का सिचुएशन चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि जो सिनेमाटोग्राफर है उसका नाम भी नहीं लेते तो उसको मास्टर जी बोलते थे। like if you I used to interview Yash Chopra at one time, for various reasons, तो उनसे जब बात करने जाते थे वो लोग सब बात ऐसे करते हैं कि जो कैमरा मास्टर है उससे मैंने बोला ऐसा करने को, तो उन Oh, लोग okay. they were seen like that, so वो दुनिया से ये लोग डायरेक्टर्स बन गए कि कोई प्रोड्यूसर होगा, उसकी दोस्ती हो गई कोई कैमरामैन या कोई एडिटर के साथ, तो वो एडिटर उसको समझाएगा कि यार ये सब तो ऐसे ही कर लेंगे, आपको क्या करना है हम बना देते हैं, ऐसा करके पढ़ता था। बट अभी ये कॉर्पोरेट कल्चर आने के बाद इन चीजों पे उतनी छूट नहीं है जैसे पहले थी, क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूट में जाके एडिटिंग करना शुरू कर दिए तो वह 90% चांस ये है कि आप फिर एडिटर ही रहोगे। अच्छा भी लगता है यार, अगर तुम फिल्म में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें एडिटिंग अच्छा भी लगेगा, कोई बुरा काम नहीं है, मजा आएगा। क्योंकि स्पेशली जब हमने बाहर से देखा नहीं हो, हम कोई इंडस्ट्री फैमिली से नहीं हो, जो रेगुलर लोग होते हैं उनके लिए तो ये सारा चीज एंटरटेनिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा। इवन सिनेमाटोग्राफी, सबसे क्रेजीएस्ट थिंग इज साउंड। साउंड पे हमारे देश में लोग काम ही नहीं करते, हर साल ऐसा एसआरएफटी और एफटीए में साउंड में लोग कम आते हैं, पर साउंड Even में पैसा भी है, सेटिस्फैक्शन भी है। like I have conducted a guidance session on sound. तो उसमें सिर्फ 4 बच्चे आए and they were like clueless about it and वो लोग करना भी चाहते थे, नहीं करना भी चाहते थे, and they were something as you said ना कि बच्चे एकदम भी नहीं आते। कई कई बार तो एफटीआई का बहुत सारा बैच में साउंड वाले मतलब एडमिशंस लेते भी नहीं है। बट Also, if you, बॉलीवुड इज लाइक रियली नीड गुड साउंड पीपल, अच्छे साउंड no, डिजाइनर्स रिकॉर्डर्स चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ओरिएंटेशन में बुलाया है फॉर बाय चांस एंड यू अप्लाई फॉर डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी और व्हाटएवर, बट इफ यू क्वालिफाई फॉर साउंड, they will usually send you a mail saying we have openings for sound department, are you interested to come? या you know या so almost every year that happens. Okay. सर मुझे तो लगता है कि जो भी एफटीआई का एग्जाम पहला देना चाहता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम दे वांट टू बी एन एक्टर, और सेकेंडली वो फिर डायरेक्टर ही बनना चाहता है। आई डोंट नो व्हाई एवरीवन थिंक्स दैट दे कैन बी डायरेक्टर। इज दिस सम काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट और व्हाट? इट्स नॉट समथिंग, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी थिंग। इंडिया में इसको ज्यादा पॉपुलर समझ जाता है, सबसे पहले एक्टर्स को फिर डायरेक्टर्स को। तो नहीं, सिंपल बात है, आप फिल्में देखो तो पहली चीज आपको स्ट्राइक एक्टर करता है ना? उसके बाद आप उसके राइट। बारे में थोड़ा पढ़ोगे, लिखोगे, ढूंढोगे तो पता चलता है अरे एक्टर कुछ नहीं है, सारा चीज डायरेक्टर बनाता है ना? तो जो बहुत ज्यादा समझ जाते हैं वो फिर उसके आगे निकल जाते हैं और फिर अलग चीजें सोचने लगते हैं। पर जो थोड़ा बहुत राइट। पढ़े पढ़े हुए लोग होंगे उन लोग डायरेक्शन प्रेफर करेंगे, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनको कुछ नहीं आता, जो ऐसे ही पोस्टर देख के फिल्म देखते हैं, उनको फिर एक्टर ही बनना होता है। तो ये मतलब लॉजिकल चीज है, तुम सोचो तो तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएगी वो क्यों ऐसा है। राइट। राइट। I had a question, sir. और So, like, how much agency would you say a cinematographer has in like the making of a film? Is it that they're always like acting on the directions of the director, or they can also exert their own agency in a film? uh, uh, if you are exerting too much agency in a film, then that film will be shit. Because, like I said before, a film is a vision of one guy. Now, if it is adulterated with a lot of other things, then it will lose clarity and focus. Simple. So, but there have been in history, like I myself, when I shoot, like I would, me and my cameraman would spend about 2 or 3 weeks talking, discussing, looking at the locations and everything. So when we come to shoot, I don't really have to tell him anything, because the camera is set, what kind of lensing we are going to do, that is set. Light and setup and all pre-planned हो रखा है कि कैसे होना चाहिए, ये सब planned है।
तो जब हम शूट पे जाते हैं तो मुझे कुछ करना ही नहीं होता, मैं चुप ही रहता हूँ ज्यादातर, मुझे कुछ बोलना नहीं होता, बिकॉज माई कैमरामैन यूजुअली नोज इट. एंड having said that, if the cameraman is not on board with your vision, then the film just wouldn't happen. You need to get your cameraman's agency on in your favor. You know, again, that is slightly going off the point of your question, but I would say that the cinematographer does not have that much agency in the voice of the film, but in the material of the film, what it will look like, what colors it will have, what kind of a person. So there are times when something that even I don't like, I will agree because my cameraman takes a call on it. So there is a certain amount of that kind of image wise agency. Like picture का पूरा चीज image जो है वो completely cinematographer का होता है कि उस image में last point पे अगर हमारा कोई debate हो तो in physical material terms at the last point I will give in to the cinematographer. You know, if he's saying that this is better, just do this, then I will do it. That's also because I would have to trust my cinematographer that he gets my vision and he's working for it. Does that Got answer it. your Thank question? Yeah. Thank you so much. Okay. Shivam, is there any question from you? Shivam? No. Okay. Okay. Is there any question from anybody related to this jet preparation or anything? मैडम एग्जाम के लिए हमको कितने परसेंटेज चाहिए इसमें, ऐसे कुछ? एटलीस्ट 50 मार्क्स तो क्लियर, 50 से भी ज्यादा ही, मेरा तो आई थिंक 60 प्लस आई थिंक करोगे तो थोड़ा तुम लोग को वेटेज मिल जाएगा इंटरव्यू ओरिएंटेशन के लिए, बुलाने के लिए. 60 तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, 60 से नीचे नहीं होना चाहिए. 60 प्लस, क्योंकि मैम हाँ मेरा भी 60 लास्ट टाइम प्लस. 53 था. हाँ या 53 था, एंड आई वाज नॉट कॉल्ड फॉर द ओरिएंटेशन एंड द तो इंटरव्यू या फॉर डायरेक्शन. सो आई थिंक या 60 60 प्लस. No, the होगा. competition has become very in my time. Yeah. Life was much easier, but now since everything is available, now people are deeply educated, man. Younger people like shock me, man. People know stuff like इतने साल में मेरे को नहीं पता जो चीजें वो young लोग बोल रहे हैं. तो there is a intense competition, but I have also noticed that the general level of GK, general knowledge amongst people, is much worse today than earlier. So I don't know. It's a very strange time, you know. People don't read here, no? They don't watch news or they don't read much. Yeah, I mean, reels really fuck you up, man. Okay. तो I'll just summarize the thing, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो. जेट प्रिपरेशन है तो FTR SLFTR का पेपर होता है, सबको थॉरली पढ़ना है. अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग बेड से उठ के जाके एग्जाम दे दोगे तो आप लोग का क्लियर नहीं होगा. यू हैव टू बी डू वेरी थॉरो प्रिपरेशन. आपको जीके डेली पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और आपको वो चीज याद होनी चाहिए. आप तुक्का तीर गेस वर्क नहीं कर सकते हो. सेकेंडली, आपको आर्ट एंड कल्चर अच्छे से याद होना चाहिए, पेंटिंग्स आनी चाहिए, पेंटिंग्स को पढ़ने की समझ होनी चाहिए. आपको फोटोग्राफी का बेसिक्स आना चाहिए. वो लोग पूछ लेते हैं फोटोग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर पर्टिकुलर फोटो आपको दे देंगे, पेंटिंग दे देंगे, उसके एनालिसिस करो. FTI के जो भी आपके LM है रिलेटेड टू योर डायरेक्शन एंड स्क्रीन राइटिंग बैच, या फिर जो भी आप पेपर आप लिख रहे हो कैटेगरी में, उसके एटलीस्ट 5 FTI के जो एलुमनाई है आपको उसका बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. अगर एक्टिंग में जा रहे हो तो उसके परफॉर्मेंस जज कर देगा, या फिर पूछेगा कि पर्टिकुलर डायरेक्टर का जो FTI का है उसका फिल्म क्यों अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगता है. ये सारी चीजें आपसे जरूर ही पूछेगा. तो FTI के 5 एलुमनाई का आपके पर्टिकुलर पेपर के लिए उसको आप रेडी कर लेना. सेकेंडली, करंट अफेयर्स हो गया. सिनेमा से रिलेटेड क्या होता है, जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा पढ़ो. हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा पे बहुत सारी बुक है. वाइड एंगल करके है, इंडियन राइटर है मनोज श्रीवास्तव आई थिंक, उनकी बुक है वो पढ़ो. हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा करके एक बुक है जो पढ़ो, वो पढ़ो. और मनोरमा करके ईयर बुक आती है, उस पर आपकी करंट अफेयर सारी चीजें दी रहती है, वो पढ़ो. तो इस तरीके से आप थॉरो प्रिपरेशन करो. जितने भी अवार्ड्स अभी मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड, साहित्य अवार्ड्स,
ऑस्कर्स इंडिया ने अभी आरआर के ऊपर झंडे गाड़े हैं, एलिफेंट विस्पर पे झंडे गाड़े, तो जितने भी ये सारी चीजें, जो भी अभी आर्टिस्ट की डेथ हुई है या फिर कोई आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, अभी जो ट्रेंडिंग आर्टिस्ट चल रहे हैं इंडस्ट्री में लाइक विजय वर्मा एंड ऑल, तो उसके ऊपर पढ़ो। पर्टिकुलर डायरेक्टर, अगर आप इस पेपर की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ डायरेक्शन स्क्रीन प्ले राइटिंग की, तो पर्टिकुलर अभी अच्छे डायरेक्टर्स कंट्री में चल रहे हैं, उनके ऊपर चीजें लिखो और थोड़े सेंसिबल डायरेक्टर्स को चूज करो ताकि एफटीआई को लगे कि आप एक सेंसिबल और सिंसियर फिल्म मेकर हो। अगर आप लिखोगे सलमान खान की फिल्म के ऊपर जिसने भी बनाई है बजरंगी भाईजान और वट एवर, सब किसी का भाई किसी का जान एंड ऑल, तो थोड़ा इनसेंसिबल हो जाएगा। तो उस हिसाब से फिल्म को चूज करके तो वो चीज आपको अच्छा वेटेज दे सकती है। और 60 के प्लस तो सोचना भी मत कि हो जाएगा, क्योंकि अगेन कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सीट्स कम है और प्लस बैकलॉग चल रहे हैं कोविड के कारण। सबको प्रॉपरली मेमोराइज करना है, मेमोराइज मीन्स मेमोराइज करना है, यू कैन नॉट डू गेस वर्क। नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, 15 का आप स्कोर किए थे, क्या पता वो 9 हो जाए, तो ऐसा काम अपने साथ मत करना। और हम लोग क्लासेस तो करवाते ही हैं, सर इज लाइक रियली 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 वर्किंग हार्ड विद द पीपल। इंडिविजुअली बैच के साथ भी हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअली सबको हम लोग रिव्यू भी कर रहे हैं, हम लोग को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इफ यू आर गोइंग फॉर द पेपर एंड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग मेंटोरशिप प्रोग्राम भी कराते हैं, दैट इज 1-to-1 जो आपका कस्टमाइज होता है। और हम लोग अगर आप कोई भी अपना फिल्म या प्रोजेक्ट करो तो हम लोग उसको प्रॉपर मेंटोर करते हैं। मैंने चैट बॉक्स पे अपने सारे कोर्सेज से रिलेटेड चीजें शेयर कर दी, तो आप लोग चैट बॉक्स पे जा सकते हो, हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम पे भी है हम लोग, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और अपडेट्स ले सकते हो। अगर आपको कोर्स में कुछ भी पूछना हो, इवन कोर्स के बाहर में भी कभी भी लाइफ में फिल्म से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन जस्ट अप्रोच अस एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू ऑल। हाँ, कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था या बड़ा अजीब हो गया था मुझे, राइट। क्या बोलूं, तुम कंटिन्यू करो। तो ये चीजें हैं, हम लोग चैट बॉक्स पे सारी डिटेल्स है, तो आप लोग एक बार चैट के थ्रू चले जाओ। हम लोग का ये डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स है, इट्स लाइक 10,000 रुपीज। उन्नति जस्ट गिव मी अ मिनट। 10,000 रुपीज का ये कोर्स है, तो आप लोग इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 5,000 करके आप 2 मंथ्स में पे कर सकते हो। हम लोग ऑलरेडी 2 बैचेस चल रहे हैं डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग की। क्लासेस की टाइमिंग हम लोग जनरली अराउंड 9 PM रखते हैं, ताकि सब लोग अपनी स्टडी से और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए। रिकॉर्डिंग सबको मिलती है क्लासेस के लिए, हर बैच की रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएगी। ये है, प्लस हम लोग रेगुलर Weekends, असाइनमेंट्स कराते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स कराते हैं, इन ऑल चीजें। ऑल्टरनेटिव डेज होती है, तो 30 क्लासेस होती है, 2 महीने का कोर्स है तो 30 क्लासेस रहेगी, तो ऑल्टरनेटिव डेज पे हम लोग रखते हैं क्लासेस करने के लिए। ये चीज है। हु वाज टॉकिंग अबाउट वीकेंड्स एंड ऑल? एनीबॉडी? weekend बैच है, वीकेंड बैच daily नहीं है, daily. ऑल्टरनेटिव है, वीकडेज पे है। तो हम लोग का अभी जो बैच चल रहा है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग का, वो मंडे फ्राइडे और वेडनेसडे चल रहा है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चल रहा है। एक्टिंग का जो बैच है वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चल रहा है। सिनेमेटोग्राफी का भी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चल रहा है। एडिटिंग और साउंड का भी हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो कर सकता है बैच हम लोगों का। उसकी डिटेल्स अगेन अब व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। हम लोग एज अ फिल्मी बैठक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा। यस उन्नति, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कोई क्वेश्चन है उन्नति? यस मैम, फिर से मुझे जाते जाते एक क्वेश्चन आया था सर से Sure, पूछने sure. के लिए। या So you were telling about that the institute is looking for a fresh voice at this point. मतलब again, आपकी नजर में, sir, how do you quantify? See, this is something we have not seen before, or this is something new. This is fresh. Papers check करो तो. when you watch something that somebody has done, then you start trying to figure out ये कैसे सोचा होगा ना. So you can see the easy answers when people are taking, like if you tell, even in a written story, when somebody has taken an easy answer or who has fallen back on a established system of doing things, meaning why is certain things, why there are certain cliches, it is easy to elicit people's feelings with those things.
When you turn that down and when you try and come up with something that you haven't or that people aren't so familiar with, then you'll see that is the freshness that I'm talking about. Don't fall for cliches and stereotypes. And if you talk about it, there are only some 37 plots in the world, so like you cannot be really creative in the plot, you know. So what you can be really creative in is in the presentation, in the way you look at the world. How can you see a person? Like when you look at a person, what are the things you look at when you? There are aspects to characterization which we all use, you know. Like I mean, कुछ हद तक तो सारे इंसान सिमिलर ही होते हैं, हाथ पैर मुंह ये सब. How are you going to make it different? You know, how are you going to make that character unlike anything that anyone has seen before? You know. So these are just, I'm just giving you small examples of that. Largely all, and it can come from any way. It can be in terms of setting, you know, somebody has a certain way of setting things, or it could also be in terms of uh, the feeling that you're trying to approach, you know. Okay, again, there are only 9 rasas. So within those 9 rasas, what combinations you use, you know. So it's very hard to quantify, to put it in that simple word. It's really about the struggle that a person goes through. Not accepting easy answers is really, in one sentence, if I were to put it, don't accept any easy answer. And also don't trust your first thought. Like you have a first thought, you wrote that thing down, then if you don't reconsider it, and if it doesn't stand in reconsideration, then it is not good, you know. So all of this stuff can be seen when you write. Like people who are used to doing screenplay and working with such environments, they will easily be able to see from the text of a person कि कैसा operate हो रहा है. तो सर So politically we have to be liberal. अगर उससे आपकी political inclination उन्हें जाननी है, तब आपको ambiguous रहना. लेकिन again, बाकी ऐसे approach में आपको again, cliche right avoid now, करना. primarily don't take easy answers. That is the simplest thing. If you have a problem, how do I resolve this issue? I have these 2 characters, this is a story, this is a situation. You're stuck in a point where you don't know what I have to do next, you know. So then there will be easy answers, there will be tough answers. If you follow tough answers, you will be into newer territories where it is tough because you don't have any roadmap for it. But if you have a reference for it, then you have some roadmap, and that makes life easier. So don't take the easy answer. सब वो 3 घंटे के पेपर में जब we are being asked to like formalize an entire story. I've had Right. my previous experiences. उसमें मैं सोचती अलग तरीके से और वो लिखते लिखते कई बार मेरे साथ ऐसी चीजें हो जाती कि पेपर छूट जाता है. So I don't think so कि ऐसे इस situation में मेरा पेपर consider भी होगा if I'm not giving a close ending or even if I'm not summarizing my story. I don't think so I would be selected, right? So No, you're wrong, because that's not why you're okay. not. What they will be looking for, again, that's what I'm telling you ना. अगर तुम्हारे एटीट्यूड में, कहानी में तुम प्रेजेंट जो कर रहे हो, देखो कोई भी चीज जो बिगनिंग होती है ना, उसका एक लॉजिकल एंड writers will be able to figure out, you know, because the teachers sitting there have been looking at, मतलब imagine how much of young people's text they must have read ना, कितने सालों से वो पढ़ रहे होंगे ना इतने सारे लोग. तो वो actually Right. मैंने भी अब at this point in life I have also had that, you know. I used to teach, तो मतलब I've taught about, मतलब सोच सकते तू 50-60 लोग तो मेरे नीचे पढ़े हैं जिनको मैं क्लासेस लिए हैं, जिनके सारे हिस्ट्रीज मैंने पढ़े. मतलब कि as your writing develops ना, you are very vulnerable. So if you have teachers, they will be able to quickly know what your scene is, you know. तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे मम्मी के साथ पापा के साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा लव लाइफ कैसा है, सब कुछ दिख जाता है राइटिंग में ना, बिकॉज इट्स अ नंगा करने वाला काम है. तो अगेन लाइक आई सेड, इट इज अ मैटर ऑफ द फ्रेशनेस ऑफ द थॉट. और अगर फ्रेशनेस ऑफ द थॉट है तो वो लोग अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे, एंड ऑब्वियसली दे विल मार्क अकॉर्डिंगली एंड देन दे विल. सर अगर इसी जल्दबाजी में मैंने एंड में कन्वेंशनल या फिर क्लीशे अप्रोच ले लिया अपनी स्टोरी वाइंड अप करने के लिए, so will I be negatively marked there? That's the thing. I mean it is sort of a nightmare for me. No, that, again, I'll start with a very deep thought, and then while I'm concluding the story, just for the sake of like tying the bow there, I'll write some very cliche thing, and then I don't think so I'll stand out as much as I want to. it's a matter of practice, you know.
it's a matter of practice, and also a matter of exposure. You know, you've seen weird kind of stuff, then you'll automatically come upon weird ideas, you know. Mhm. तो तो मतलब मजे लेना चाहिए बेसिकली, लाइक टेंशन में नहीं आना चाहिए, मतलब कि it's only a film school exam, you know. Even if you don't get it, it's no big deal. Don't worry about it. You can try again next time, you know. So like, don't worry about anything. Just enjoy yourself, family. But having said that, at that point, if you want to write the best of yours, then you should have a practice of writing, you know, and a systematic practice of writing, knowing the aspects like of कि मतलब जानबूझ के चीजें कर रहे हो, बहुत सारे चीजें लोगों को नेचुरली आता है, यू नो. सम पीपल आर वेरी गुड एट सर्टेन थिंग्स, वो सारी चीजें वैसे ही रह जाएंगी, और यू डोंट हैव टू चेंज that. But there will be aspects of writing which you're not good at, or you haven't paid enough attention, or nobody has pointed it out to you, or you yourself never realized it, so you won't correct those things. So if you go through a systematic calibrating of your articulation, you know, कि जो 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 तुम कह रहे हो उस चीज का एक फॉर्मल सिस्टमैटिक अप्रोच अगर तुम्हारा है, तो फिर तुम कहीं पे भी कभी भी कितने भी टाइम में अपने आप को टाइम कर सकते हो. You know, you have only 15 minutes to figure this out. So in that 15 minutes you can conceptualize, and then you have whatever, you know, उस तरीके से तुम डेवलप कर पाते हो अपने आप को ना. I mean, so that's the only way to approach it, you know. There's no other way, like there's no easy solution, there is no क्या बोलते हैं, there is no one shot तरीका. It's like a very holistic attitude you have to have, कि सारा कुछ डेवलप करना होता है तुम्हारे. यू शुड टू राइट, यू नीड मटेरियल ऑल्सो ना. अगर तुम्हें दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो तुम क्या लिखोगे, यू नो. वही फिर मेरे घर में क्या हुआ, मेरे पापा मम्मी, अपने रिलेशनशिप, अपने लाइफ के ऐसी चीजों के बारे में तुम लिखोगे. तो यू नीड टू हैव अ हाउ टू से आर्टिस्टिक एंड ऑब्जर्वेशनल bend of mind, because all writing art requires you to observe the world. So Thank yeah. you so much, sir. Thank you so much. This was very helpful. Thank you so much. Yeah, and through this course, if you join our this JET preparation course, तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा राइटिंग पे ध्यान रखते हैं, तो डेली असाइनमेंट्स होते हैं, एंड सर रिव्यू इट इंडिविजुअली. तो जस्ट इन केस यू वांट टू टेक अप द कोर्स विद अस, you Whether may you take up a register. course with us or not, don't go to editing, okay? Yeah. We need directors, यार. अच्छे directors आए नहीं रहे दुनिया में, और तुम बोल रहे हो ना इंडस्ट्री में दिखने रहे, तो you could be the next one, right? Yeah, sure. As a industry really needs good intellectual writers to shape up the country's thought. I think I personally feel that. Okay, किसी और के पास कोई Alright. और क्वेश्चन है? नितिन, अश्विन, सूरज, उन्नति, स्वांकी, शिवम, or will just like to wrap up it for today? Okay, I take there is no question, so I'll just wrap it up. तो I'll just tell you about the course last. तो हम लोग का जो कोर्स है ये 2 months का कोर्स है. इसकी जो फीस है डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग की, इट्स 10,000. बाकी जो अपने अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक स्क्रीन एक्टिंग, वो उसका भी हम लोग नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं. उसका गाइडेंस सेशन कल रख रहे हैं हम लोग. सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और साउंड, सबका हम लोग नया नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं. अगर किसी को भी, आपके फ्रेंड्स है किसी को भी ज्वाइन करना हो तो हम लोग को अप्रोच कर सकता है. द फीस आर वेरी नॉमिनल, 12,000 रुपीज है for screen acting, direction, screenplay, screen acting, editing, sound designing, and the cinematography. Direction का अपना 10,000 रुपीज है. और अपार्ट फ्रॉम दैट ये 2 months का कोर्स है. आपके ये कोर्स बैचेस ऑनलाइन चलेंगे. इवनिंग बैच है, दैट इज 9 PM to 11. जो क्लासेस होती है अगेन 1.5 से 2 घंटे के लिए होती है. इसमें आपको MCQ, MSQ, आपका आर्ट एंड कल्चर के नोट्स, जीके के नोट्स, आपको ये सिनेमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं सबके आपको क्रक्स पे नोट्स दिए जाएंगे ताकि आप उसको थॉरली रिवाइज कर सको. हम लोग मॉक टेस्ट भी करते हैं, प्लस हम लोग फिल्म्स दिखाते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं. ये सारी चीजें होती है. और आपका हर पेपर की राइटिंग के ऊपर पर्टिकुलरली ध्यान दिया जाता है ताकि जब एग्जाम में लिखो तो आपको पता रहे आप क्या लिख रहे हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो. एज यूनिटी सेट की उसने फिर लास्ट अप्रोच किया और इधर उधर लिख दिया, इनकम्प्लीट कर दिया. तो अगर आप रेगुलरली राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज आपको डिफिकल्ट हो जाता है. तो राइटिंग की आप लोग डेली प्रैक्टिस करो अगर आप स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन में जा रहे हो तो.
और हम लोग मेंटोरशिप प्रोग्राम भी करा रहे हैं, दैट इज अ 3 month कोर्स विच वी ऑफर। तो उसमें आपको हर पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपको मेंटोर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। 1-to-1 सेशन होता है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, आपके ऊपर डिपेंड है आप ऑनलाइन ले रहे हो और ऑफलाइन ले रहे हो। इन सबसे रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए आप हम लोग अप्रोच कर सकते हो थ्रू आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने शेयर की है चैट बॉक्स में। हम लोग आप टेलीग्राम पे भी ढूंढ सकते हो, दैट इज फिल्मी बैठक, FILMIBAITHAK। तो आप लोग उधर भी ज्वाइन कर सकते हो। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। एंड बेसिकली फिल्मी बैठक का यही एम है टू प्रोवाइड फिल्म लिटरेसी एंड गाइडेंस टू द सेकेंड टायर सिटी पीपल, ताकि वहीं से ही सारे इंडस्ट्री में लोग आते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर कर आते हैं। तो फिल्मी बैठक का ये एम है कि उन लोगों को बेसिक लेवल से ही, जब उन लोग का फर्स्ट स्टेप वो लोग लेने जाएं या फिर जब वो थॉट भी है फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, तो उन लोग को हम लोग गाइड कर सके कि कैसे क्या जाना है इंडस्ट्री में, कैसे अप्रोच करना है। और अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिपरेशन एंड सब्जेक्ट, कि कैसे आप अप्रोच करना है, आपका कैसे काम होगा। प्लस अगर आप हम लोगों के साथ ज्वाइन करते हो तो आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड होगी, आपका खुद का नेटवर्क होगा। आप जो आपका FTI और SFTI कभी भी आपको प्लेसमेंट गारंटी नहीं करता है, डिड नेवर डू प्लेसमेंट्स फॉर यू। तो आपका नेटवर्क ही काम आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही काम आती है। तो अगर आप हम लोग को ज्वाइन करते हो, हम लोग से कोई भी कोर्सेज लेते हो, तो आपका अपना खुद की कम्युनिटी, खुद का नेटवर्क बिल्ड होगा। और प्लस हम लोग ये नहीं कि हम लोग सिर्फ कोर्सेज ही कराते हैं, वी आर ऑल्सो द फिल्म मेकर्स। सर इज अ डायरेक्टर, तो सर की जो फिल्म जो भी बनती है, तो उसमें आप लोगों को चांस भी मिलेगा काम करने के लिए, अगर आप लोग का लगेगा तो। और आपका खुद का नेटवर्क होगा तो आप एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, इस तरीके से सबको काम मिल सकता है। दैट्स द थिंग। और ये जो जेट प्रिपरेशन का जो कोर्स है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो, इट्स लाइक अ मिनी फाउंडेशन कोर्स। तो आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी, आप पेपर बहुत ही कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे और अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर करके बैठ के लिख पाओगे ये चीजें। एंड डोंट वरी, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, डोंट वरी, बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने फिल्म स्टडीज नहीं की है बट दे आर रियली रियली गुड फिल्म मेकर्स। ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसकी टेंशन मत करो कि मेरा नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं आता। जितना आता है उतना प्रैक्टिस करो। एंड फिल्म मेकिंग इज मोर लाइक प्रैक्टिस का है, इट्स एन आर्ट। तो आप जब तक जितना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका आर्ट एनहांस नहीं होता है। दैट्स द थिंग। तो आई रैप द सेशन। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू श्रीजीत फॉर कंट्रीब्यूटिंग योर टाइम टू दिस। और आप सबका भी अपने अपने को खुद को हेल्प किया हम लोग का गाइडेंस सेशन लेके, तो बिग 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 थैंक टू यू ऑल। तो विल रैप आवर सेशन। चैट बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, आप लोग हमारे कोर्सेज से रिलेटेड आप लोग उसको देख सकते हो। कल हम लोग का एक्टिंग का गाइडेंस सेशन है 9 PM मंडे को, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू श्रीजीत। Yeah, I'm Thank you, and ending the best session. of luck to you all. Thank you, So, Suraj. I mean, Yeah. Srijit, everybody is liking the session. I'm just telling there's yeah, हम लोग क्या यही कोशिश रहता है कि हम लोग इंटरैक्टिव रखें, ताकि हम लोग 1-to-1 बात करके आपकी जो इश्यूज है उसको क्लियर करें, ताकि आप लोग क्लियरली फिल्म मेकिंग में आओ, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रगलिंग फील्ड और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, राइट? chalo ओके, then, goodbye. Best of luck, and hope to see some of you guys. Bye bye. बाय एवरीवन। थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, पता चल जाएगा सारी चीजें कोर्स